بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب میزان الحکمت جلد نمبر 7 ہے اور صفحہ نمبر 231 ہے، اور آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ یہ بک کاشان بصیرت کے پلیٹ فارم سے آپ سب سامعین کے لیے ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ آج اس سلسلے میں جس موضوع تک ہم پہنچ گئے ہیں وہ فصل نمبر 51 ہے، اور اس کا عنوان ہے تانا و تشنیع۔ 3023 اس کا عنوان کا نمبر ہے ترتیب کے لحاظ سے، اور اس کا آغاز جو ہے وہ حدیث شریف سے ہو رہا ہے۔ کتاب میں کچھ فصلیں جو ہیں وہ قرآن کریم کی آیات سے شروع ہوتی ہیں، اور کچھ موضوعات جو ہیں وہ ڈائریکٹ احادیث سے ان کا آغاز ہوتا ہے۔ تو یہ جو ہمارا موضوع ہے تانا و تشنیع، اس کا آغاز حدیث مبارکہ سے ہو رہا ہے، اور جس حدیث سے ہم آغاز کر رہے ہیں وہ 14733 اس کا نمبر شمار ہے، اور آئیں اس کا ترجمہ پڑھنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ حضرت خضر علیہ السلام نے جناب موسیٰ علیہ السلام کی جو نصیحتیں کی ان میں سے ایک یہ بھی تھی: اے فرزند عمران، کسی کو اس کے گناہوں پر طعنہ و تشنیع نہ کرو بلکہ اپنے گناہوں پر گریہ کرو۔ امام محمد باقر علیہ السلام بہار الانوار کی جلد نمبر 73 ہے، صفحہ نمبر 383 ہے، اور مزید یہ جلد نمبر 78 اور صفحہ نمبر 449 ہے۔ اگلی حدیث جو اس ضمن میں پیش کی جا رہی ہے وہ ہے 14734، اور یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تنبیہ الخواطر سے صفحہ نمبر 91 سے لی گئی ہے کہ جو شخص اپنے کسی مومن بھائی کے ایسے گناہ پر طعن کرے جس سے وہ توبہ کر چکا ہو تو وہ شخص اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک وہ گناہ خود نہ کر لے۔ اگلی حدیث 14735 اور الترغیب جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 310 سے لی گئی ہے کہ جو شخص اپنے مومن بھائی کو کسی گناہ پر طعنہ و تشنیع کرے تو وہ اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک اسے خود نہ کر لے۔ روایت احمد راویوں نے کہا کہ ایسے گناہ پر طعنہ و تشنیع کرے جس سے وہ توبہ کر چکا ہے، اسے ترمذی نے روایت کیا ہے۔ اگلی حدیث 14736، جو کسی کو کسی چیز پر طعنہ و تشنیع کرے وہ خود اسی چیز میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام غرر الحکم۔ 14737 پہ حدیث کا ترجمہ ہے کہ جو کسی برائی کو عام کر دے وہ ایسا ہے جیسے اسے خود اختراع کیا ہو۔ جو کسی مومن کو کسی چیز پر طعنہ و تشنیع کرے تو وہ اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک خود اس کا ارتکاب نہ کر لے۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہار الانوار جلد نمبر 73 صفحہ نمبر 384، جلد نمبر 75 صفحہ نمبر 215، جلد نمبر 77 اور صفحہ نمبر 150 اس کتاب میں ہے کہ وہ ایسے ہے جیسے اس نے اس کا خود آغاز کیا ہو۔ اگلی حدیث 14738 اور اس کا ترجمہ ہے کہ جو کسی مومن کو لعنت ملامت کرے خدا بند تعالیٰ اسے دنیا و آخرت میں لعنت ملامت کرے گا۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی بہار الانوار جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 384، کافی کی جلد نمبر 2 اور صفحہ نمبر ہے 356۔ اب آ جائیں گے حدیث پہ 14739، اپنے کسی بھائی کی مصیبت پر خوشی کا اظہار نہ کرو، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اس پر تو رحم فرمائے گا اور وہی مصیبت تمہاری طرف پھیر دے گا۔ یہ بھی فرمایا کہ جو شخص اپنے بھائی پر نازل شدہ مصیبت پر اظہار مسرت کرے تو وہ دنیا سے اس وقت تک نہیں جائے گا جب تک خود اس میں مبتلا نہ ہو جائے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کافی کی جلد نمبر 2 ہے اور صفحہ نمبر 359 ہے۔ 14740، اپنے بھائی کی مصیبت پر اظہار مسرت نہ کرو ورنہ اللہ اس پر تو رحم فرمائے گا اور تمہیں اس میں گرفتار کر دے گا۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الترغیب جلد نمبر 3 ہے اور صفحہ نمبر 301 ہے۔ اسے ترمذی نے بھی روایت کیا ہے کنز العمال حدیث نمبر 7547 پہ۔ 14741،
اللہ तबारक व तआला ने हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम को किसी गुनाह के बगैर मुसीबतों में मुब्तला कर दिया तो उन्होंने उस पर सब्र किया, यहाँ तक कि उन पे ताना और तशनी की जाने लगी। लेकिन अंबिया ताना और तशनी पर सब्र नहीं करते और उसकी शिकायत अल्लाह से करते हैं। हजरत इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम नूरुस सकलैन जिल्द नंबर 3 और सफ़ा नंबर 448 14742। तर्जुमा है, जब तुम में किसी की खिदमत गुजारने का इर्तिकाब करे तो चाहिए कि उस पर कोड़ों की हद जारी करे, लेकिन उसे तानो तशनी ना करे। हजरत रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तंबीहुल खवातिर हदीस नंबर 46। मैं इसको दोबारा से पढ़ती हूँ कि जब तुम में किसी की खिदमत गुजार जना का इर्तिकाब करे तो उसे चाहिए कि इस पर कोड़ों की हद जारी करे, लेकिन उसे तानो तशनी ना करे। हजरत रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तंबीहुल खवातिर सफ़ा नंबर 46 14743। तर्जुमा है कि अबू हुरैरा कहते हैं कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम में से किसी की लौंडी जना का इर्तिकाब करे तो उसे चाहिए कि वो उस पर हद जारी करे, लेकिन उसे ताना और तशनी ना करे। 3 मरतबा तो ऐसा ही किया जाएगा। अगर चौथी बार भी वो ऐसा करे तो उसे कोड़े भी मारे जाएं और बेच भी दे। सनन अबू दाऊद जिल्द नंबर 4 है और सफ़ा नंबर 160 है। 14744। एक अराबी ने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में अर्ज किया कि मुझे कुछ हिदायत फरमाएं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह का तक़वा इख्तियार करो। अगर कोई शख्स तुम्हें किसी ऐसी चीज के बारे में ताना और तशनी करे जिसे वो तुम्हारे मुतालिक जानता है तो तुम उसे ऐसी चीज के बारे में ताना और तशनी ना करो जो तुम उसके मुतालिक जानते हो। इस तरह उसका वबाल उस पर होगा और अजर तुम्हारे लिए। तंबीहुल खवातिर है और सफ़ा नंबर 89 है। अगली हदीस पे आ जाए 14745। अगर तुम्हें तुम्हारा मुसलमान भाई किसी ऐसी बात के बारे में ताना और तशनी करे जो वो तुम्हारे बारे में जानता है तो तुम उसे ऐसी बात के बारे में लान और तान ना करो जो तुम उसके मुतालिक जानते हो। इस तरह तुम्हें अजर मिलेगा और उसको गुनाह होगा। हज़रत रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तंबीहुल खवातिर सफ़ा नंबर 290। अगली हदीस पे आ जाए 14746। अबू जलील जाबिर बिन सलीम का कहना है कि मैंने एक शख्स को देखा कि लोग उसकी राय को सर आंखों पे रखते हैं और उसकी हर बात तस्लीम करते हैं। मैंने पूछा कि ये बुजुर्गवार कौन है? लोगों ने कहा ये रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। रावी का बयान है कि मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खिदमत में अर्ज किया, मुझे कोई नसीहत फरमाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किसी को भी गाली न दिया करो। चुनाचे मैंने इसके बाद किसी आजाद और गुलाम हत्ता के ऊंट और बकरी तक को गाली नहीं दी। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नेकी के किसी काम को हकीर न समझो। अगर कोई शख्स तुम्हें गाली दे और ऐसी बात के बारे में तुम्हें तानो तशनी करे तो वो तुम्हारे मुतालिक जानता है, तो जो कुछ तुम उसके बारे में जानते हो वो ज़बान पर हरगिज़ न लाओ, बस इसके फेल का गुनाह उसी पर होगा। सनन अबू दाऊद जिल्द नंबर 4 सफ़ा नंबर 56। अगली हदीस पे आ जाए। अगली हदीस है 14747। मारूर बिन सवैर कहते हैं कि हम मुकामे रब्ज़ा में हजरत अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास से गुजरे। उस वक्त उनके बदन पर सिर्फ एक चादर थी और उनके गुलाम पर भी एक ही चादर थी। हमने अबू ज़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से कहा कि अगर आप इस चादर के साथ एक और कपड़ा भी पहन लेते तो एक हल्ला बन जाता। हल्ला का मतलब इन्होंने हाशिए में लिखा है कि उन्होंने ये इसलिए कहा कि हुल्ला अरबों के नजदीक दो कपड़ों को कहते हैं, एक कपड़े पर हुल्ला का इतलाक नहीं होता। हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा कि एक मर्तबा मेरे और मेरे एक मुसलमान भाई के दरमियान बातों का सिलसिला चल निकला। उसकी माँ का ताल्लुक अजम से था
اور میں نے उसकी माँ के बारे में एक ऐसी बात कही जो उसे नागवार हुई। उसने इस बात की शिकायत रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से की। चुनाचे मैंने हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात की तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबू ज़र, तुम ऐसे शख्स हो कि जिसमें अभी तक ज़माने जाहिलियत की बातें पाई जाती हैं। मैंने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो किसी को गाली देगा वो भी उसके माँ बाप ही को गाली देगा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अबू ज़र, तुम ऐसे शख्स हो जिसमें अभी तक ज़माने जाहिलियत की बातें पाई जाती हैं। याद रखो, वो तुम्हारे भाई हैं। अल्लाह ताला ने इन्हें तुम्हारा मातहत बनाया है, लिहाजा तुम उन्हें वही कुछ खिलाओ जो तुम खुद खाते हो, वही लिबास पहनाओ जो तुम खुद पहनते हो। इन्हें कोई ऐसा काम ना कहो जो उनकी ताकत से ज्यादा हो। अगर कहो भी तो इसकी बजावरी में उनका हाथ बताओ। सही मुस्लिम की ये जिल्द नंबर 3 से सफ़ा नंबर 1286 से हदीस नंबर 38 है और हदीस नंबर 40 है। ये इसी मफ़हूम के करीब है। कौले मोहल्ले फलाइदा वो हद और बात है हदूद का इजरा, गुनाहों का कफ़ारा हो जाता है। इसके अलावा दूसरा मौजू है नीक ऐब और बाब है दूसरों के ऐब भुला दिया जाए। अगले सफ़े पे आ जाए 236 और इस पे जो मौजू है वो है तानाज़नी, और तानाज़नी मौजू का नंबर शुमार है 3024। इस पे जो हदीस है वो है 14748। जो इंसान किसी मोमिन को तानाज़नी करता है तो वो उससे भी बदतर हालत में मरता है और वो इस बात का सज़ावार होता है कि किसी अच्छाई की तरफ ना लौटने पाए। इमाम मोहम्मद बाक़र अलैहिस्सलाम वसाइल शिया जिल्द नंबर 8 और सफ़ा नंबर है 612। एक और रिवायत में है कि वो तमन्ना करेगा कि अच्छाई की तरफ लौट जाए। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम बिहारुल अनवार जिल्द नंबर 75 सफ़ा नंबर 145। 14749 से जो हदीस बयान की गई है वो वसाइल शिया जिल्द नंबर 8 सफ़ा नंबर 212 से 612 से ली गई है और ये हदीस है इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम की। अल्लाह ताला ने मोमिन को अपने जलाल और कुदरत की अजमत से खल्क़ फरमाया है, लिहाजा जो शख्स मोमिन पर तानाज़नी करेगा या उसकी बातों को ठुकराएगा, दर हकीकत वो अल्लाह की बातों को ठुकराएगा। कौले मुअल्लिफ मुलाहिज़ा हो वसाइल शिया जिल्द नंबर 8 सफ़ा नंबर 611 बाब नंबर 159। निज़ामुल हिकमत की जिल्द नंबर 7 इस वक्त पढ़ी जा रही है और अब हम पहुंचते हैं इसके सफ़ा नंबर 237 पर, और 237 पर हमारे पास पत्थर नंबर 52 है और उससे अब हम जिस का आगाज कर रहे हैं वो है अस्लूबे जिंदगी। और अस्लूबे जिंदगी में जो पहला मौजू है 3025 पे, उसका उन्वान है खुशगवार तरीन जिंदगी। ये भी हदीस से शुरू हो रहा है। आए हदीस का तर्जुमा पढ़ते हैं। और पहली हदीस पे अगर दी गई है हुर्रुल हुक्म से हज़रत अली अलैहिस्सलाम की। तर्जुमा है कि खुशगवार तरीन जिंदगी तकल्लुफ़ात को बरतरफ कर देने में है। 14751 से जो हदीस है उसका तर्जुमा है 14751 पे जो हदीस है उसका तर्जुमा है कि कोई जिंदगी हुस्न अखलाक से बढ़कर खुशगवार नहीं। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम की बिहारुल अनवार जिल्द नंबर 78 और सफ़ा नंबर 198 से यह हदीस ली गई है। 14752 इसका तर्जुमा है कि खुशगवार तरीन जिंदगी उस शख्स की है जो अल्लाह के तक़सीम करदा रिज़्क़ पर राज़ी हो। हज़रत अली अलैहिस्सलाम हुर्रुल हुक्म। 14753 पे जो हदीस है उसका तर्जुमा है कि हदीस मेराज में है कि ए अहमद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या आप जानते हैं कि कौन सी जिंदगी सबसे ज्यादा खुशगवार है और किस जिंदगी को बका हासिल है? अर्ज किया, नहीं परवरदिगार। फरमाया, जिस जिंदगी का हामिल मेरे जिक्र में सुस्ती ना करे, मेरी नेमत को फरामोश ना करे, मेरे हक से जाहिल ना हो और शबाना रोज मेरी रजामंदी के हसूल में
मसरूफ रहे। बिहारुल अनवार जिल्द नंबर 77 है और सफ़ा नंबर 28। अगली हदीस 14754 पे उसका तर्जुमा है कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की हिकमत और दानाई की बातों में से है कि हमने जिंदगी की नरमी और सख्ती को आजमाया और इस नतीजे पर पहुंचे कि सबसे अदना किस्म की जिंदगी खुशगवार तरीन जिंदगी है। शरह इब्ने अबिल हदीद जिल्द नंबर 3 सफ़ा नंबर 159। 14755 पे जिस हदीस का तर्जुमा है वो ये है कि पाकीज़ा तरीन जिंदगी क़नाअत में है। हज़रत अली अलैहिस्सलाम की हुर्रुल हिकम से है। 14756 पे जो हदीस है वो भी हज़रत अली अलैहिस्सलाम की हुर्रुल हिकम से ली गई है और इसका तर्जुमा ये है कि सबसे ज़्यादा नेमत भरी जिंदगी उसकी है जिसे अल्लाह ताला ने क़नाअत से नवाजा और उसे साले शरीके हयात अता फरमाई। 14757 पर जो हदीस है वो हज़रत अली अलैहिस्सलाम की ही है और बिहारुल अनवार की जिल्द नंबर 69 से और सफ़ा नंबर 399 से ली गई है कि मैंने खुशगवार जिंदगी को तलाश किया तो ख्वाहिशात नफसानी के तर्क किए बगैर उसे हासिल न कर सका, लिहाजा तुम भी अपनी ख्वाहिशात को तर्क कर दो ताकि तुम्हारी जिंदगी खुशगवार बने। 14758 पे जो हदीस है उसका तर्जुमा है कि हम अल्लाह ताला से शहीदों की मंजिलत, नेकों की हमदमी और अंबिया की रफ़ाकत का सवाल करते हैं। हज़रत अली अलैहिस्सलाम नहजुल बलागा खुतबा नंबर 23। बेहतरीन जिंदगी अगला मौजू है बेहतरीन जिंदगी और इसका नंबर शुमार है 3026। 14759 पर जो हदीस हमारे लिए बयान की गई है वो हज़रत अली अलैहिस्सलाम की हुर्रुल हिकम से है कि बेहतरीन जिंदगी उस शख्स की है जिसके फजलो करम के साए में दूसरे लोग जिंदगी बसर करें। 14760 हदीस का तर्जुमा है कि बेहतरीन जिंदगी उस शख्स की है जिससे दूसरों की जिंदगी बेहतर तौर पर गुजरे। हज़रत अली अलैहिस्सलाम हुर्रुल हिकम। 14761 पे जो हदीस है उसका तर्जुमा है कि अली बिन शुएब कहते हैं कि मैं हज़रत अबुल हसन इमाम अली इब्ने मूसा रज़ा अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुआ। उन्होंने फरमाया, अली, किस शख्स की जिंदगी सबसे बेहतर होती है? मैंने अर्ज किया, मौला आप मुझसे बेहतर जानते हैं। फरमाया, अली, उस शख्स की जिंदगी जिसके साथ दूसरों की जिंदगी बेहतर गुजरे। फिर फरमाया, अली, किस इंसान की जिंदगी सबसे बदतर होती है? मैंने अर्ज किया कि हुजूर मुझसे बेहतर आप जानते हैं। फरमाया, जिसकी जिंदगी में दूसरों की जिंदगी अजीरन हो। बिहारुल अनवार जिल्द नंबर 78 सफ़ा नंबर 341 तोहफुल अक़ूल सफ़ा नंबर 330। अगले मौजू पे आ जाए 3027 जिंदगी को मकदर करने वाली बातें। 14762 तीन चीजें जिंदगी को मकदर कर देती हैं। नंबर 1 जालिम हुक्मरान, नंबर 2 बुरा हमसाया और नंबर 3 बदकार औरत। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम बिहारुल अनवार जिल्द नंबर 78 और सफ़ा नंबर 234 है। 14763 पे 14763 पर जो हदीस है, तीन चीजें इंसान की जिंदगी को खुशगवार नहीं बनाती। नंबर 1 कीना, नंबर 2 हसद, नंबर 3 बदखलकी। हजरत अली अलैहिस्सलाम गुरूरुल हिकम। 14764 पे जो हदीस है कि जो शख्स बहुत सी बातों पर चश्म पोशी ना करे और गरूर को काबू में ना रखे उसकी जिंदगी बेचैनी से गुजरती है। हजरत अली अलैहिस्सलाम गुरूरुल हिकम और में ये हदीस बयान की गई है। 14765 पे है कि तैश जिंदगी को मकदर कर देता है। हजरत अली अलैहिस्सलाम गुरूरुल हिकम। 14766 पे जो हदीस है, अबू खालिद सजिस्ताती कहते हैं कि हज़रत इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि 5 सिफ़तें ऐसी हैं कि अगर किसी में इनमें से एक भी ना हो तो उसकी जिंदगी नामुकम्मल, उसकी अक्ल ज़ायल और दिल परेशान रहता है।
ان میں پہلی ہے جسمانی تندرستی، دوسری امن و سکون، تیسری رزق کی وسعت اور چوتھی ہم خیال ساتھی۔ میں نے عرض کیا ہم خیال ساتھی سے کیا مراد ہے؟ تو فرمایا نیک بیوی، نیک اولاد اور نیک ہمدم۔ پانچویں جو ان سب صفات کی جامع ہے وہ ہے فراخی زندگانی۔ بہار الانوار کی جلد نمبر 4 ہے، صفحہ نمبر 186 ہے، جلد نمبر 79 ہے اور صفحہ نمبر 300 ہے۔ قول مؤلف ملاحظہ ہو بخل، حدیث نمبر 1598 اور باب بخیل کو آرام کم نصیب ہوتا ہے۔ اگلا موضوع ہے 3028 زندگی کے بارے میں متفرق احادیث۔ موضوع ہے زندگی کے بارے میں متفرق احادیث۔ اس سلسلے میں پہلی حدیث کا ترجمہ حضرت علی علیہ السلام کی حرر الحکم سے ہے کہ زندگی حسن تقدیر سے قائم ہے اور اس کی وفا کا سہارا حسن تدبیر ہے۔ 14768 ترجمہ دعائیہ کلمات۔ میرے دل کو دنیا میں مشغول نہ رکھ اور دنیاوی معاش و آخرت کے ثواب سے منہ پھیرنے کا سبب نہ بنا۔ امام محمد باقر علیہ السلام بہار الانوار جلد نمبر 94 ہے اور صفحہ نمبر 269 ہے۔ 14769 پہ جو حدیث ہے اس کا ترجمہ ہے کہ دنیا میں زندگی تو بس دو آدمیوں کے لیے ہے، ایک وہ عالم جو حق بات بولتا ہے اور دوسرا وہ طالب علم جو سنتا اور یاد رکھتا ہے۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم بہار الانوار جلد نمبر 77 ہے اور صفحہ نمبر 172۔ 14700 حدیث کا ترجمہ ہے کہ صحیح معنی میں زندگی تین چیزوں میں ہے، کشادہ گھر، خوبصورت بیوی، چھوٹے پیٹ والا گھوڑا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بہار الانوار جلد نمبر 76 ہے اور صفحہ نمبر 148 ہے۔ 14771 پہ جو حدیث ہے اس کا ترجمہ ہے کہ تنگ مکان زندگی کی بدبختی میں شامل ہے۔ امام محمد باقر علیہ السلام بہار الانوار جلد نمبر 76 ہے اور صفحہ نمبر 153 ہے۔ اگلی حدیث ہے 14772 خاطر و مدارت میں زندگی کی سلامتی ہے، حضرت علی علیہ السلام حرر الحکم۔ 14773 ترجمہ حسن خلق سے زندگی اچھی گزرتی ہے، حضرت علی علیہ السلام حرر الحکم۔ 14774 پہ بدبختی کی زندگی سے بہتر ہے کہ جلد موت آ جائے، حضرت علی علیہ السلام حرر الحکم۔ 14775 پہ جو حدیث ہے اس کا ترجمہ ہے کہ زندگی کبھی شیریں ہوتی ہے اور کبھی تر، حضرت علی علیہ السلام غرر الحکم۔ اس پارٹ کو ہم یہیں پہ اختتام کرتے ہیں، صفحہ نمبر 241 پہ اس کا اختتام ہوا۔ اگلے صفحے کا آغاز انشاءاللہ ہم 245 سے کریں گے، کیونکہ بیچ میں دو صفحے جو ہیں وہ بالکل سادے ہیں۔ ابھی یہ کتاب میزان الحکمت جو ہے وہ جاری و ساری ہے اور اگلے پارٹ کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر